Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम so रब्बी should I इश्रह ली start? सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today we are going to start a very interesting and joyful course of mini business tycoons. ठीक है, it will help you people to make your own small businesses and set up your thought. Okay, we have Manal with our ex-students from Badge 1. So, Manal, would you like to tell me about something about your business project? Yeah, so Alhamdulillah, it's going on. Alhamdulillah, like so many people got their like bracelets, and it was a very good journey to do that business, and I got earn my own money by myself, and got like I was doing the business with the resemblance of Abdurrahman bin Auf, and when I got the money, I always like that. Like I just uh, do it the half for me and half for Allah. Then the half for me, I use it for me, like for my bracelets. Like it, for example, take some beads, go to shop and take some beads, or go to shop, take some strings for the bracelet. All this stuff that for bracelets, I go like in my money, I take that, and then in the money of Allah, I do everything for Allah Subhanahu wa Taala. What? Thank you very much, Manal. You have explained about your course with us, a very beautiful journey with you. And Manal, so a we are, teacher. G. Manal is a girl. Yes, Manal is a girl, and she's very nice and sweet girl. She's very hardworking and make different bracelets for selling. Okay, we are formally going to start our course. ठीक है, कोर्स हमारा है जी मिनी बिजनेस टाइकून्स. बेसिकली द आइडिया के हम व्हाई वो स्टडी बिजनेस. अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगी. आपकी कुछ सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगी. यू पीपल ऑल विल रिप्लाई मी. हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ. व्हाट यू पीपल थिंक कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? मुझे आप लोग चैट में बता देंगे या आप लोग वन बाय वन So मुझे वॉइस we में बता can, दें. so we can do something. So we can do something on our own. Okay, we can do something. Anyone else? जी प्लीज, आई नीड द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पीपल. जो कुछ माइंड में आ रहा है बच्चे बताएं. इफ देर आर मदर्स, दे कैन आल्सो शेयर देयर आइडियाज. सो वी विल शेप दीज आइडियाज एंड make your thought about what we have to do as a business entrepreneur. So can I speak? Manal, Speak aloud, Shravya, can Manal. I speak? Can I speak? Yes. Briefly आप रिप्लाई करें कि why we Okay. are here in the world. So, in the world, we are here because to worship Allah Subhanahu wa Taala. good, Okay, good why guess, we are here? Manal. Why we are here? Actually, we are here. We are sent by Allah Subhanahu wa Taala. ठीक है. The first man was created in the world is Hazrat Adam alayhi salam. ठीक है. And Yes, हमने अपना I know belief. the story. Okay, okay. We just reformulate your ideas through this story. कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया गया तो उनको क्या हेवन भी दिखाया गया. हेल, बोथ शोन Yes. हेल एंड हेवन. ठीक है. इंसान का जो असल मुकाम क्या है वो जन्नत है. How we can earn Jannah, how we can reach to
जन्ना, ठीक है? वी I कैन, know, teacher. यस, ओके, टेल मी। We have to do good deeds and do good businesses यस, to go there. गुड Like pray deeds, Salah. good deeds and good businesses. Yes, we can fulfill the our responsibility. ठीक है? Okay. Anyone else who will add in this way? We have Hamra with us, Dureshewar, Manal. You wanna add something? अच्छा, इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, ठीक है? और इंसान की जो इंस्टिंक्ट है ना, बेसिकली जो जिबिल्लत है, वो आराम पसंद है, ठीक है? लेकिन हमें रास्ता बताया गया कि हाउ वी कैन अर्न जन्नत थ्रू fulfilling our responsibilities as a Khalifatul Ard. As a Khalifatul Ard, how we can fulfill our responsibility? Okay, Manal, you wanna leave? Okay, how we can fulfill this responsibility? We can fulfill responsibility to follow the ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह सुबहाना ताला, ठीक है? हर जिंदगी के हर मामले में हमने अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलना है, ठीक है? इफ वी आर गुड बिजनेसमैन, वी आर गुड एंटरप्रेन्योर्स, वी कैन फाइनेंशियली हेल्प द अदर पीपल, ठीक है? लाइक आप लोगों ने हजरत उस्मान गनी के बारे में पढ़ा होगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनकी अर्निंग का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि यू वांट टू बिकम रिच। उन्होंने पूरी जो मदीना की स्टेट थी, उनको किसी ना किसी तरह सपोर्ट करते थे, लोन भी देते थे लोगों को, फाइनेंशियली सदकात के थ्रू भी। फिर वो जिनके साथ बिजनेस कर रहे होते थे, उनको भी उनसे बेनिफिट होता था, और वो एक बहुत बड़े बिलियनर थे, ठीक है ना? तो बीइंग अ मुस्लिम ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वी हैव टू बी पुअर, वी हैव टू लिव अ पैथेटिक लाइफ। वी कैन हैव गुड लिविंग स्टैंडर्ड, बट वी हैव टू सी द बाउंड्रीज, ठीक है? इफ वी आर अर्निंग, व्हाट आर आवर इंटेंशंस, हमने देखना है कि हमारी इंटेंशंस क्या है, ठीक है? वी वांट टू हेल्प आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स, एंड we want to help the other people around us, like our friends, the people in our locality, the poor people, the maids, ठीक है? तो इन सब लोगों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कि जब हम खुद अच्छा अर्न कर रहे होंगे, हम किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी में होंगे, ठीक है? तो Teacher, जी जी, you mean helping someone like someone is shifting to a new home and we have a hotel and then we ask them to stay there for a while. यस, Is it helping? यस, इट्स ऑल्सो हेल्पिंग। तो वो हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट दैट होटल, ठीक है? उसके लिए आपको एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, आपको रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, और उन रिसोर्सेज से आपने क्या करना है, फिर आपने होटल बनाना है, ठीक है? तो इस होटल से फिर क्या होगा कि आपकी कुछ अर्निंग्स भी होंगी, देन यू विल बी एबल टू entertain अदर पीपल फ्रीली, ठीक है? वी हैव अदर पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो। आई वुड लाइक कि सब लोग मेरे साथ जो है ना इंटरेक्टिव एक सेशन रखें, ताकि ये कि हम लोग सक्सेसफुल हो जाए, जो चीज़ें हम समझना चाह रहे हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, एनी अदर वन मुझे बताएंगे कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी को कैसे बेनिफिट दे सकता है? आप लोग अपने माइक जो है ना वो ऑन करें और बता सकते हैं। My mic is on. दुरेशेवार, ओके, अगर जी जी, सेशन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। हाउस अबाउट यू? थैंक यू, आई एम फाइन ऑल्सो। ओके, I'm just listening. I'll participate.
ओके, नहीं, आई वुड लाइक इफ यू आर मदर और अ स्टूडेंट, आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्योंकि जो हम मदर्स की थॉट्स होती हैं ना, वही बच्चों में आगे कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। आई जी जस्ट जी वांट बिल्कुल। आस्क कि एक अच्छा जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, वो कैसे अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकता है? आई थिंक सो कि जैसे वो जो कोई चीज़ फॉर एग्जांपल सेल करने के लिए रेडी करता है, अगर उसका प्रॉफिट जो उसके ऊपर वो प्रॉफिट रख रहा है, उस प्रॉफिट को वो ये सोचे कि इससे दूसरे को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना रखे, इतना रखे कि उसकी अपनी जो जो उसने सोर्सेज वगैरह उस पर यूज़ किए हैं वो सारे फुलफिल हो जाएं। और इसके अलावा इतना प्रॉफिट हो कि उसकी अर्निंग हो जाए और बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि इस्लामिक लिहाज से भी ये ठीक नहीं कि मतलब वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रख के अगर सेल करता है कोई भी चीज़। हाँ जी, इससे जो बिल्कुल। है वो दूसरे लोग आसानी से उसे जो है वो अवेल कर सकेंगे अवेल चीज़ कर को। सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, उसमें फर्दर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि किन प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट बहुत कम होना चाहिए और कि इन प्रोडक्ट्स पे बहुत मार्जिन होता है, बहुत कम मार्जिन होता है प्रॉफिट का, और किस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ज़्यादा प्रॉफिट की, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, वो सब आगे हम कोर्स में लेके चलेंगे। अभी देखें कि अगर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो बिजनेस शुरू करता है, तो उस वो क्या होगा, वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लाइक हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि एक टेबल अगर हम ले लें, ठीक है, तो टेबल जो है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए वुड की जरूरत पड़ी, ठीक है। वुड के लिए पहले क्या हुआ कि ट्री प्लांट किया गया, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों को इस काम पे हायर किया गया, फिर उसकी कटिंग हुई, वो फैक्ट्री में गया, वहां पे एक लंबा प्रोसेस था, उससे टेबल बना, ठीक है। तो उसमें जितने लोग शामिल होंगे, दे ऑल आर अर्निंग मनी, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन कर सकते हैं। तो बिजनेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है। और जो इस्लामिक सोसाइटीज है ना, उसमें प्रेफर प्रेफर ये किया जाता है कि प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर माइक्स। इस्लामिक सोसाइटी में ये देखा जाता है कि आप किसी को अगर लमसम में हेल्प कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उसको किसी बिजनेस प्रोसेस में डाल दें, उसको कहीं उसकी जॉब लग जाए, किसी काम में बंदा लग जाए, तो उससे जो बेनिफिट होगा वो फॉर एवर होगा, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा, सोसाइटी को उसको फायदा होगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे सहाबा इकराम के साथ, और एक बूढ़ा शख्स आया उनके पास, और ही सेज कि आई हैव नथिंग, और ही वाज बैगिंग। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास घर में क्या है? उसने बोला कि मेरे पास एक बाउल है, और आई थिंक कुछ और, उसने एक आध कोई जरूरत की चीज बताई। उनका भी आप वो ले आओ। वो लेके और वहां पे साहबा इकराम से कहा कि हु विल परचेज दिस बाउल? तो वो फाइनल हुआ जी कि 2 दिरहम्स में वो बाउल एक साहबा है वो परचेज कर लेंगे। 2 दिरहम उनको दिए, उन्होंने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1 दिरहम आप घर ले जाएं, इसमें अपने बच्चों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें, और दूसरा दिरहम जो उससे आप एक एक्स खरीदें, कुल्हाड़ी खरीदें, ठीक है, उससे लकड़ियां काटें और उसको सेल करें, और फिर आपने इस तरह 15 डेज के बाद मेरे पास आना है, ठीक है। डेज का मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, मैं दोबारा देख चेक कर लेंगे। तो वो कुछ दिनों के बाद आया, फिर उसने इसी तरह वुड कटिंग स्टार्ट कर दी, और एंड पे सेल करना, और नेक्स्ट डे फिर जाना, तो वो उससे अच्छी खासी उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी। मीन्स कि इस्लाम जो है वो हमें मांगने से, सवाल करने से मना करता है। तो वो सवाल तभी नहीं करेंगे जब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो उसके लिए बिजनेस स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इस वक्त स्कूलिंग सिस्टम है, वो डिस्करेज करता है न्यू आइडियाज को। तो इस किस्म के कोर्सेज स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बच्चे अपनी एबिलिटीज को पहचानें, उनकी जो हॉबीज हैं, जो वो करना पसंद करते हैं, उसके मुताबिक वो ऐसी चीजों की तरफ आए। एक तो उनका माइंड ब्रॉड हो कि उन्होंने क्या करना है फ्यूचर में, या उनके पास ये ऑप्शन है कि इफ दे हैव completed their study and they are not getting job, तो what they can do to earn money for the time being, or they can have a big business in future also। तो ये सब चीजें, अब इसका फायदा क्या है कि बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है,
ठीक है, उनमें सेलिंग स्किल आती है। सेलिंग स्किल सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा प्रॉफिट कमाना है, इसके बहुत सारे फिक में प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर दो लोग आपस में सेल परचेज कर रहे हैं, लाइक हम मार्केट में जाते हैं, वी बाय सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो उसमें अगर कोई एक भी, या सेलर या जो परचेज करने वाला है, उनमें से अगर कोई भी झूठ बोलेगा तो उस मामले में अल्लाह का हाथ वहां से उठ जाएगा, उसमें बरकत खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इस चीज को पहचान लें कि कोई भी डीलिंग है दैट मस्ट बी फेयर, अगर आपने कोई प्रॉफिट रखा है या कुछ भी है, तो उसमें ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। आप उसको उन अल्फाज से बात कर सकते हो जो कि आप ट्रूथफुल हो रहे हैं जिसमें। ठीक है, तो इस तरह ये छोटे छोटे जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चों को इंशाल्लाह करवाए जाएंगे। और जो हमारा ये मिनी बिजनेस टाइकून्स है उसमें बेसिकली दो सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, किडेनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आप किडेनॉमिक्स में हम मोस्टली पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और बिजनेस स्टडीज़ में वो सारी टेक्निक्स एंड टूल्स कि कैसे उनको इस्तेमाल करके अर्निंग की जा सकती है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट हम लोगों ने रखी है उसमें एक्टिविटीज के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू ऐसे ही डिजाइन किया गया ताकि बच्चे उसको इजिली समझ सकें। अच्छा, रिसोर्सेज के बारे में हम मजीद जानने के लिए उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कोई भी बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है ना, तो उससे पहले एक आइडिया होता है, एक ख्याल होता है कि मैंने क्या करना है, क्या सोसाइटी को बेनिफिट देना है, क्या बेनिफिट इससे मेरी ज़ात को होना है, क्या ये बिजनेस मेरे लिए सदका जारिया बन सकता है। फिर उस आइडिया को आगे लेकर रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं और उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। अब रिसोर्सेज को जानने के लिए सबसे पहले मैं एक वीडियो प्ले करूंगी। ठीक है, इसमें एक टेबल मेकिंग प्रोसेस बताया गया है फैक्ट्री में, आप उसको देखें। और इसमें मदर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, मुझे कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, फिर मैं आपको वहां से रिसोर्सेज का समझाऊंगी कि व्हाट आर रिसोर्सेज। यहाँ पे आई थिंक ये प्ले नहीं हो रही, मैं इसको सेपरेटली स्टार्ट करती हूँ। ये वीडियो देखें, इसमें वुड कटिंग की गई है और इसको फैक्ट्री तक लाया गया है। अब इसको बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनके थ्रू वर्किंग एरिया तक पहुंचाया जाएगा जहाँ पे प्रोसेस के बाद टेबल बनेगा। हमें इसमें से आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही? उस मिनट में देखो जी, इसको। इसमें आवाज़ नहीं है, सिर्फ़ पिक्चर्स नज़र अच्छा, आ रही हैं। इसमें ना मेरी आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ Yes, रही है। sorry. अच्छा, जी, इसमें आपकी जो, आवाज़ क्लियर है। हाँ जी, इसमें जो वॉइस है ना इसमें कुछ बता कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ वीडियो इज एवरीथिंग। ठीक है,
इसमें ना सिर्फ आप ये देखें कि जो प्रोसेस हो रहा है ना, आप सिर्फ उसको देखें, और उससे मैंने रिसोर्सेज बताने हैं। ये जस्ट कटिंग की आवाज है। अब ये स्लैब्स में कटिंग हो रही है बुक की। The tree is getting cut. ये दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह से It's एक part of tree. भी प्रोडक्ट अगर बनती है ना, तो कितनी उसमें आप देखें कि रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, मैन पावर इस्तेमाल हो रही है, और कितने प्रोसेसेस हैं, मशीनरी यूज हो रही है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार होती है। तो फिर हम इसमें देखेंगे कि इन रिसोर्सेज की कौन कौन सी काइंड्स हैं। हम्म। Nice. अभी ये देखें, से टेबल जो है ना वो रेडी करने लगे इसकी फिनिशिंग करके वुड की। मीन्स कि कोई भी चीज हमारे सामने जब आती है, तो हम इजली उसको कह देते हैं कि आई लाइक दिस और आई डिसलाइक दिस। लेकिन आप देखिए कि उसको बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी फोर्सेस हैं जो मिलके वर्क करती हैं, और फिर वो प्रोडक्ट हमारे पास आती है। और अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस साइड से आ जाना, पता नहीं हमजा कहीं रख के Amazing. गया है। It's amazing. आपने वीडियो को गौर से देखना है, मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने हैं। Okay, teacher. Everyone try to participate. It was good. आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस सारी वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि एक टेबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं।
a tree, Hmm, some paint, and some trucks, and some machines. Okay, just a minute. I'm going to write it for all of you people ताकि हम लोग सब कुछ लिख सके ना. may I tell? Yes. That's जी जी बताएं आप. इसमें कुछ वुड यूज हुई हुई है। इसके अलावा जो Wood. ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हुए हैं, या Yes. मतलब लेबर जो काम कर रहे थे, और इसके अलावा टूल्स यूज हुई हैं, मशीन्स जो कि उसको कटिंग के लिए यूज कर रहे थे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट यूज हुई हुई है उसे इधर से उधर लेके जाने के लिए। Okay, machines. अच्छा यहाँ पे या आई मीन नेचुरल रिसोर्स है इसमें और ह्यूमन रिसोर्स भी है, और मशीन्स के लिए कैपिटल रिसोर्स आई थिंक। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है. ओके. और एनीवन एल्स? जी थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई किया. अच्छा एनीवन एल्स ऐड करेंगे? अच्छा वुड, पेंट. ओके. एनीथिंग एल्स? trucks. ट्रक्स. ट्रक्स हमारे पास लॉजिस्टिक्स में. Yeah. ओके. ट्रक्स. जी. I need the participation from Hamra, Maria. I think we have Aruj with us. लीव कर गई हैं अरूज? यही सारी चीज़ें यूज़ होती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जो वुड है, अब वुड को प्लांट वुड हासिल करने के लिए हमने एक ट्री लगाया, ठीक है. ट्री को क्या क्या चाहिए होता है ये मुझे बता दें. वुड के लिए कौन से रिसोर्सेज हाँ, चाहिए? वो चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, ओके वी सनलाइट नीड चाहिए। सॉइल. सॉइल. Ma'am, for cliff. Yeah. Soil, plant, wood. Ma'am. आई थिंक शायरा, आप प्लीज, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही. Ma'am, for lift. लिफ्ट. ओके दैट इज मशीन. दैट लिफ्ट कम्स अंडर मशीन. ओके. हाँ जी. और सॉइल, ट्री को ग्रो करने के लिए और क्या चाहिए होता है? Ma'am, seed. सीड. सनलाइट. Water. सनलाइट भी चाहिए होती है. और इसके अलावा ट्री को, Water. सॉरी, Water. वाटर. Wood वाटर polish. एंड और क्या Ma'am, प्लांट्स के लिए water. उनको एयर चाहिए होती है Ma'am, प्लांट्स को? wood polish. Ma'am, ओके wood ओके. polish. पॉलिश. ओके. और प्लांट्स को Ma'am, एयर wood चाहिए होती है? polish. एयर भी चाहिए होती Ma'am, है wood प्लांट्स. smoother. Ma'am, wood smoother. ओके वुड स्मूदर इट्स मशीन. ओके ठीक है ना, वो हमारी मशीन में आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज हैं. अब इन रिसोर्सेज को अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो ये हमारे पास कुछ ब्रॉडर टाइप्स आ जाती हैं ना. ठीक है, तो वो टाइप्स कौन सी होंगी? ये हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज हैं. देखिए, वुड. यार पता नहीं क्या हो गया. प्लीज टॉक विद मी, अवॉइड एक्स्ट्रा डिस्कशंस इन द क्लास. ठीक है, अब हमारे पास वुड है, सॉइल, सनलाइट, वाटर. ये क्या चीजें हैं? ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट आर दीज? नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. और एक आंसर आई थिंक दुरेश अवार की तरफ से आया था, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो यहाँ पे लेबर काम कर रही है डिफरेंट लेवल पे, मैनेजर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज. दे आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. और जितने टूल्स इस्तेमाल हुए हैं लाइक हैमर, नेल्स, कील जिसको बोलते हैं, मशीनरी, ट्रक्स,
ये सब क्या है? पॉलिश, ये जितने भी मटेरियल इस्तेमाल हुए इनको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसोर्सेज। व्हाट वी कॉल? College. कैपिटल Capital रिसोर्स। resources. कैपिटल रिसोर्सेज, ठीक है। तो यही रिसोर्सेज आज हमने पढ़ने थे। मैं एक Miss, आपको, हाँ जी, स्लाइड आपको शो करती हूँ। उसमें यू कैन सी व्हाट आर दीज रिसोर्सेज। ओके math, एंड, and soil. हाँ जी, सॉइल हम लोग कर चुके थे। चले अभी हम लोग आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ दोबारा। अच्छा, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपने रीज्वाइन कर लेना है, ठीक है? Okay. ओके। होप यू ऑल पीपल आर एंजॉयिंग दिस क्लास। मैंने कोई ऐसी टेक्निकल बात नहीं की। Yes, I am. एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल? मुझे अपना रिप्लाई दे दें। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? Math fertilizer. यस, नो नो नॉट फर्टिलाइजर, एट ये भी ऑल। हमारा, क्योंकि हमने उसको परचेज किया तो वो भी हमारा कैपिटल रिसोर्सेज में आएगा। जो नेचुरली सॉइल के अंदर मौजूद है तो वो फिर नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। अभी देखें कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे पास, लाइक ट्रीज, माउंटेन्स, Water. एनिमल्स, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? लाइक सनलाइट, मटेरियल्स फाउंड इन नेचर दैट ह्यूमन यूज, ठीक है। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी Tree. रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं नेचर से, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, Natural resources. ठीक है। नेचर में सॉइल, वाटर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आपने बहुत गौर से देखना, फिर मैंने आपको वर्कशीट्स भी देनी है इस पे। अच्छा, अभी देखें, इसमें एक और स्लाइड है, उसमें चीजें आ गई हैं, लाइक Teacher, फॉरेस्ट, wait. रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, ऑयल, एयर, ये सब चीजें ये नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? ह्यूमन रिसोर्सेज। अब वहां पे जो लेबर काम कर रही थी, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे इंजीनियर्स होंगे जो कि मशीनरी को ऑपरेट कर रहे होंगे, दे ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या हो सकता है? अब आप देख लें कि यहाँ पे स्लाइड में ये जितने भी प्रोफेशंस काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, लाइक Human resources. कारपेंटर, नर्स, डिजाइनर, टेलर, प्लम्बर, इंजीनियर, फार्मर, पुलिसमैन, मैकेनिक, लॉयर, टीचर, डॉक्टर, ये सब क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है। दीज ऑल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द पीपल हु वर्क एंड डू जॉब्स। कोई भी चीज बनाने Job. के लिए जितने लोग काम करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, Is. हाँ जी, थर्ड नंबर पे देखें, हमने देखा था कि ट्रक्स इस्तेमाल हुए हैं, मशीनरी इस्तेमाल हुई है, और फर्टिलाइजर इस्तेमाल होगी है ट्री को ग्रो करने के लिए। मे बी दे आर यूजिंग हैमर, प्रेसिंग मशीन्स, मशीन्स फॉर पॉलिशिंग, ये सब क्या है? कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाए हुए होते हैं। कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स ने Yeah. खुद बनाए हुए होते हैं, बनाए होते हैं. यस, टू मेक दैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसमें देख लें कि जैसे Just like shirt. कंपनी कार्स, स्टॉक्स को फिलहाल छोड़ दें, आपकी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मशीनरी, डिफरेंट बॉन्ड्स, और सॉफ्टवेयर अगर कोई इस्तेमाल हो रहा है, लाइक आप देखें कि हमारे जो कपड़े हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है, वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैनेज किया जाता है। पेटेंट्स होते हैं कुछ, Just like this. हाँ जी, पेटेंट्स होते हैं, लाइक कि आपका जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ना, लाइक आप देखेंगे, आर यू पीपल गोइंग टू KFC और एनी मल्टीनेशनल चेन, तो वहां KFC, पे, yes. हाँ जी, उनका एक ना बर्गर का, या फिर उनके जो चिकन है, चिकन स्टिक्स, उनका एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो उन्होंने रजिस्टर्ड कराया हुआ, नो वन कैन फॉलो दैट फॉर्मूला, ठीक है। वो अपनी इंग्रेडिएंट्स तो ला सकते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला उनकी परमिशन के बगैर कोई नहीं यूज कर सकता। डेट इज कॉल्ड पेटेंट्स ना, ठीक है। तो कैपिटल रिसोर्सेज क्या होंगे? टूल्स एंड मशीन्स
जो कि प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और हाँ जी, ये मीटिंग एंड होने वाली है, वी विल ज्वाइन अगेन। तो फिर मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगी कि उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज किस तरह से हम लोग किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। Teacher, wait. In the same, will you give us the link or we should use the same link? सेम लिंक। ओके, हम लोग बात कर रहे थे रिसोर्सेज की, और लेमनेड में डिफरेंट रिसोर्सेज हमने देखे थे। व्हाट आर द डिफरेंट रिसोर्सेज? ठीक है, उसमें हम लोगों ने लेमन इस्तेमाल किया, वाटर इस्तेमाल किया। ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। ओके, नाउ Natural resources. मैमुना, आप बताएं कि इसमें कैपिटल रिसोर्सेज मुझे बताएं कौन कौन से हैं लेमनेड में। What are the capital resources used in laminate? Naila, okay, Yes. you're doing over here. Mamuna, what are the natural resources? Capital Natural resource. resources. Water and lemon. Okay, natural resources are lemon and water, and we have arham also. Capital resources बताएं लेमनेट में कौन कौन से हैं, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं और जो टूल्स इस्तेमाल किए हैं वो सारे हमारे कैपिटल रिसोर्सेज होंगे। यानी कि कैपिटल रिसोर्सेज, Capital हाँ जी, resources. कैपिटल रिसोर्सेज हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। Capital resources. Teacher, यस, how did you make that triangle very fast? triangle. Okay, Yeah. we will make after this. We were talking about the capital resources को फिनिश करते हैं ना, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। जितनी भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड टूल्स, ये हमारे क्या हैं? Two कैपिटल रिसोर्सेज। ये क्या है? resources. कैपिटल Capital रिसोर्सेज। resources. Who are raising this? Ishal, Oh, that's not good. Hmm? uh, Is it a good way? I just ठीक है। just if आप, I ठीक है, you are the active participant of the class. Ingredients, ingredient ingredients and tools, ये सारे क्या हैं? कैपिटल रिसोर्सेज। लेमिनेट से आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आप ताकि कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ ही जाएं, और जितनी भी रेसिपीज में जो यूज़ हुई है, स्किल यूज़ हुई है वाइल स्क्वीजिंग द लेमन, ठीक है, उसको मिक्सिंग करना, उसमें आइस की एक प्रॉपर क्वांटिटी को मेंटेन करना, शुगर को मेंटेन करना, यानी कि ये सारी जो रेसिपी है और जो स्किल है वो क्या है? रेसिपी एंड स्किल। ये क्या है? नॉलेज रिसोर्सेज। ये क्या recipe है? and skill. Knowledge नॉलेज रिसोर्स। एंड हु इज resources. मेकिंग लेमनेड? नॉलेज रिसोर्सेज। लेमनेड कौन Resources. बना रहा है? इशाल इज Knowledge मेकिंग लेमनेड। resources. Okay, the person who is making the lemonade is the labor, human resource. ठीक है? I think you all understand about this Lemonade. concept. This concept. Now, मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ जिसमें कि आपने मुझे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड से हम बाहर आते हैं, Identify. और बस यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास एंड करेंगे। Just a minute, I have to open the slide. We have something. हाँ जी, ये वर्कशीट है हमारे पास एक। कैन यू सी दिस? And now ओके, यू कांट सी दिस।
Yeah, nobody The can. nobody can. Okay, I share with you people ना. इसमें आपने So I can't सोर्सेज see को it. आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, दिस इज द वर्कशीट. ठीक है, ये मैं क्लास में शेयर कर, आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ. ठीक है, आपने मुझे बताना होगा कि कोई भी एक हम ले लेते हैं, लाइक टमाटो केचप. ठीक है ना, टमाटो केचप में बनाते वक्त कौन कौन से टमाटो ग्रो करते वक्त और टमाटो केचप बनाते वक्त कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे. वेदर के जब टमाटो ग्रो कर रहे हैं तो सॉइल की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, एयर वाटर, ये सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे वो आपने नेचुरल रिसोर्सेज लिखने हैं. कैपिटल रिसोर्सेज में वो टूल्स, मशीनरी. अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपने जो पैन यूज किया है, दीज ऑल आर कॉल्ड, मे बी यू यूज नाइफ, कैपिटल रिसोर्सेज. और ह्यूमन रिसोर्सेज, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द कैचअप, वो ह्यूमन रिसोर्स होंगे. ठीक है, तो ये आपने सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मेंशन करने हैं. Okay, I'm going to end Okay. the class. Inshallah, we will meet tomorrow at 3:30 to continue our this class. ठीक है, तो ये कुछ छोटे Okay. कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ आएंगी. देन यू कैन अपलिफ्ट योर माइंड एंड योर फाइनेंशियल लिटरेसी. ठीक है, ओके जी, अल्लाह Okay. हाफिज. Allah बाय Hafiz. बाय. Bye. आई एम शेयरिंग योर असाइनमेंट इन द ग्रुप. ओके, Okay. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Bye, teacher. बाय You too. Bye. बाय.